हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। आज के मॉड्यूल में हम लोग चैप्टर को थोड़ा आगे लेके जाएंगे। लास्ट मॉड्यूल में अगर आपको पता रहेगा, वी स्टार्टेड विथ इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वाज मेंस्ट्रुअल साइकिल। वी फिनिश्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस किया, मेंस्ट्रुअल साइकिल को फिनिश किया। सो बाय एंड लार्ज अभी तक हम लोगों ने जो देखा है दैट इज मोर सेंटर्ड टुवर्ड्स the male reproductive system, the female reproductive system, and then we talked about the different primary sex organs in males, and then we talked about primary sex organs in females. Apart from that, one of the important process in case of females was the menstrual cycle. Okay, so we discussed menstrual cycle, we finished that topic. तो अभी के मॉड्यूल में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक important topic which is called as the gametogenesis. Now students, you must be knowing that the process of gametogenesis इन जनरल, जब हम लोगों ने मॉड्यूल 1 लेक्चर 1 स्टार्ट किया था तो मैंने तुमको तब बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यू हैव अ मेजर मेल गैमेट which is called as the sperm, and in case of females it is what is called as the ovum. Now the process of formation of the sperm or the process of formation of ovum together, this process is nothing but what is called as gametogenesis. So बच्चों, gametogenesis के बारे में डिटेल में बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि इसके बारे में एग्जैक्टली हम लोग को जानना क्या है। इस मॉड्यूल में हम लोग क्या जानेंगे, ठीक है। सो gametogenesis मतलब क्या, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज gamete. So you are in turn discussing the process of gamete formation. Now technically speaking, how many types of gamete do we have? अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया, you have what is called as the two types of gametes. Okay, हमारे पास दो टाइप के gametes हैं. Okay, ये कौन से दो gametes हैं? Number one, male gamete which is called as sperm, and the female gamete which is called as ovum. नाउ बच्चों कि जब भी हम लोग मेल गैमेट स्पर्म के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड एज spermatogenesis. Okay, spermatogenesis. The process of formation of sperm is spermatogenesis. And students, when we talk about process of formation of ovum, जब अपन ovum के formation के बारे में बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं oogenesis. Okay, we call it as oogenesis. Now be it spermatogenesis or be it oogenesis, whatever the situation is, we have to understand for the fact that spermatogenesis and oogenesis, both of these processes are dependent on one regulatory hormone. Okay, और ये hormone हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है. सो बी इट आइदर स्पर्म का फॉर्मेशन और ओवम का फॉर्मेशन, both of this is regulated by a hormone called as FSH. FSH का फुल फॉर्म क्या था बच्चों? FSH का फुल फॉर्म इज follicle stimulating hormone. So follicle stimulating hormone is that hormone which can help in the process of formation of sperm and formation of ovum. Now this FSH is under the direct regulation of another hormone which is called as GnRH, which is released by the hypothalamus. So gonadotropin releasing hormone is that hormone which will take the regulation of the FSH, and once the FSH is released, it will take the hold over the process, either formation of sperm or formation of ovum. So हम लोग को दोनों भी पार्ट्स पढ़ने हैं, हम लोग को स्पर्मेटोजेनेसिस भी जानना है, हमको oogenesis भी जानना है. बस जानने से पहले इतना आप समझ लेंगे कि जो गैमेट्स हमेशा बनते हैं, ठीक है, तुमको ये चीज पता है कि जो भी गैमेट्स हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, ओके, दीज गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड. ओके बच्चों, ये हमेशा कैसे रहेंगे? हैप्लॉइड. हैप्लॉइड का मतलब क्या है? हैप्लॉइड का मतलब है इट कंटेन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, बट ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का, हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ अ टाइप ऑफ डिवीजन विच इज कॉल्ड एज द मियोसिस.
ओके मियोसिस। और मियोसिस आपने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है क्या, कि मियोसिस एक ऐसा टाइप का डिवीजन था जिसको आप रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हो। रिडक्शनल डिवीजन मतलब जहां पे क्या क्रोमोसोम नंबर एग्जैक्टली हाफ हो जा रहा है। सो क्रोमोसोम नंबर का हाफ हो जाना या क्रोमोसोम नंबर का रिड्यूस हो जाना इज रिडक्शनल डिवीजन, इन अदर टर्म्स आल्सो कॉल्ड एज मियोसिस। बट वन थिंग इंपॉर्टेंट यहाँ पे द पॉइंट ऑफ हाईलाइट वुड बी दैट बिफोर meiosis this gamete formation occurs through a primary type of a cell which is diploid. You understanding the point? Primary type of a cell. This primary type of a cell is what is called as the primordial germ cell. इसको आप बोलते हो primordial germ cell. This primordial germ cell is produced from a type of a epithelium. एक type of epithelium से बनता है which is called as germinal. इसको बोलेंगे जर्माइनल एपिथीलियम. ओके, व्हाट कैन यू कॉल इट एज जर्माइनल एपिथीलियम. सो जर्माइनल एपिथीलियम से आपको प्राइमोर्डियल जर्म सेल बना, जो प्राइमरी टाइप ऑफ अ सेल है जिसका इनहेरेंट नेचर इज डिप्लॉइड. इसका अपन मल्टीपल टाइम्स माइटोसिस करेंगे, फॉलोड बाय हम लोग मियोसिस करेंगे, तब जाके आपको स्पर्म मिलेगा एंड ओवम मिलेगा. सो बच्चों ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है एज टू हाउ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम स्टार्ट्स. ओके, सो फर्स्ट अपन जो डिस्कस करेंगे दैट इज नथिंग बट द spermatogenesis. Okay students, so let's quickly go into the understanding point of what is called as spermatogenesis. Spermatogenesis. So if you look at the word, just look at the word sperm, a male gamete, genesis is formation, that is formation of a male gamete, formation of a sperm is nothing but spermatogenesis. okay, ये spermatogenesis जो है हम लोगों ने ना 3 phases में इसको डिवाइड कर दिया है. we have divided it into 3 important phases. students कौन से 3 important phases है? सबसे पहला, now you can see here the very first phase, just we'll talk about first names. The very first is what is called as multiplication phase. okay, सबसे पहला phase is multiplication phase. Second phase is nothing but the growth phase. okay, growth phase. And the third is nothing but what is called as maturation phase. ओके, सो स्पर्मेटोजेनेसिस को अपन ने 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है. मल्टीप्लिकेशन फेज है, ग्रोथ फेज है एंड द थर्ड इज द मैच्योरेशन फेज. ये तीनों फेजेस को कंबाइन करके पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है. इसके पहले मैंने तुमको भी जस्ट पिछले वाले स्लाइड में इंट्रोडक्शन दे दिया कि रेगुलेशन किस तरीके से हो रहा है उसका क्या, तो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट दैट अगेन, वी विल जंप डायरेक्टली टू द कॉन्सेप्ट. So now the process, the very first beginning of the formation of the sperm begins by what is called as the germ cell. Yes, so germ cell सबसे पहला, can you see that primordial cell? This primordial cell inherently किस तरीके से है? This primordial cell inherently is diploid. ठीक है, ये आपके पास diploid है. It is diploid. Now this primordial cell is going to undergo repeated mitotic divisions. Okay, so this primordial germ cell or the primordial cell is going to undergo what is called as mitosis. अभी आप देखेंगे तो माइटोसिस होने के बाद रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स. ओके, मतलब बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स करने के बाद this primordial cell will get converted into what is called as the spermatogonia. Okay, spermatogonia. You must remember and understand that spermatogonia also is diploid in nature. It is also diploid in nature. So मतलब मैंने क्या किया, बिकॉज ये टाइप का माइटोसिस है, माइटोसिस में कोई भी क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन हो नहीं रहा, तो जब भी हम लोग माइटोसिस का प्रोसेस करते हैं तो जो सेल जिस क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट में रहेगा वही क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट आपको उसके डॉटर सेल्स में भी दिखेगा. सो मतलब क्या, प्राइमोर्डियल जर्म सेल जब डिवाइड किया, तो प्राइमोर्डियल सेल है वो जब डिवाइड किया तो वो डिवाइड करने के बाद माइटोसिस हुआ. और माइटोसिस में जब बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स बने, वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स आर इनहेरेंटली गोइंग टू फॉर्म और हैव द सेम क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट एज देयर पेरेंट सेल. And that is what the mitosis is in general. So whenever I'm talking about the process of mitosis, spermatogonium
formation occurs through the division of mitosis retaining the same chromosomal complement. मतलब सेम क्रोमोसोम नंबर होने का पूरा क्रोमोसोम एग्जैक्टली सिमिलर रहेगा प्राइमोर्डियल जर्म सेल का और स्पर्मेटोगोनिया का। स्पर्मेटोगोनिया एक बार बना ना, यहां पे डिवीजन कुछ देर के लिए रुक जाता है। ओके कुछ देर के लिए डिवीजन विल स्टॉप, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन, द फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन विल स्टॉप। ओके सो ये वाला जो पूरा प्रोसेस मैंने अभी डिस्कस किया है, इट इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन फेज, जहां पे क्या हुआ, प्राइमोर्डियल सेल फटाक से डिवाइड किया है और क्या बना दिया अपने को, स्पर्मेटोगोनियल सेल। दोनों का प्लॉइडी कैसे है, दोनों का क्रोमोसोम नंबर कैसे, 2n है 2n है। अभी वो जो स्पर्मेटोगोनियम सेल है ना, जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया this spermatogonia cell is going to undergo the process of what is called as growth. Growth का meaning, it is undergoing the process of development. कैसे development करेगा, growth in terms of increase in size. okay? साइज में इंक्रीज हो जाएगा। अभी आप सवाल पूछेंगे साइज में कैसे इंक्रीज हो रहा है। सी डेवलपमेंटल प्रोसेस इटसेल्फ इज इन्वॉल्विंग द चेंज इन द साइज, द सेल्यूलर साइज ऑफ अ ऑर्गेनिज्म और अ सेल। सो ये साइज का इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू व्हाट इज कॉल्ड एज accumulation ऑफ फूड। सो खाने का बहुत सारा कलेक्शन करेगा सेल और अपना साइज बढ़ाते जाएगा। एक बार उसने अपना साइज बढ़ाया आफ्टर द डेवलपमेंट, आफ्टर द ग्रोथ फेज, दैट formed newly formed cell which is formed after the phase of growth is nothing but what is called as the primary spermatocyte. So मतलब क्या, स्पर्मेटोगोनिया एक बार डेवलप हो गया तो सबसे पहला बनेगा which is called as primary spermatocyte. नाउ यहां पे एक सवाल आ सकता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो इट इज अ रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ अ सेल, द आंसर शुड बी स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया विल ग्रो इन साइज ड्यू टू accumulation of food and thereby increase in the size will lead to formation of a new type of a cell and that new type of a cell is nothing but the primary spermatocyte. यही primary spermatocyte again will be diploid बिकॉज वो माइटोसिस का ही प्रोडक्ट है ना, वो माइटोसिस का ही प्रोडक्ट है। तो आपको क्या मिला, आपको डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिल गया है। नाउ दिस डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ओके, दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट is now going to undergo the process of what is called as meiosis. ओके अभी क्या कौन सा प्रोसेस चालू हो जाएगा, मियोसिस। और आपको बच्चों पता है कि मियोसिस ना दो फेजेस में डिवाइडेड है, मियोसिस 1 है एंड मियोसिस 2 है। सो सबसे पहला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो रहेगा, इट इज गोइंग टू अंडरगो व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज गोइंग टू अंडरगो व्हाट इज कॉल्ड एज मियोसिस 1। ओके मियोसिस 1। एक बार मियोसिस 1, अभी आप याद रखेंगे कि ये भाई साहब डिप्लॉयड थे, मियोसिस 1 जैसे ही हो जाएगा वैसे ही दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ओके अभी जो फेज अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट मैच्योरेशन। ओके द थर्ड फेज व्हिच इज मैच्योरेशन। सो मैंने क्या कर दिया, मैंने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस 1 करवा दिया, मियोसिस 1 करवाने की वजह से मुझे क्या मिला, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो रहता है इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। ओके हैप्लॉइड क्यों सर, मियोसिस हो गया ना, मियोसिस 1 हो गया है। दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अभी थोड़ा चीजें अलग हो जाएंगी। अभी ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ओके नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। This secondary spermatocyte will undergo what is called as meiosis 2. ओके मियोसिस 2 एंड मियोसिस 2 करने के बाद भाई साहब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज गोइंग टू फॉर्म नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड एज द स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड अगेन विल बी करेक्ट हैप्लॉइड। देखिए जरा, तो मैंने क्या कर दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का मैंने मियोसिस करवा दिया, मियोसिस 2 करवा दिया। मियोसिस 2 करवाने के बाद मुझे कौन से टाइप के सेल्स मिले हैं, स्पर्मेटिड्स। नाउ यू शुड रिमेंबर दैट माइटोसिस में एक सेल के 2 होते हैं, मियोसिस में एक सेल के 4 होते हैं। तो मियोसिस 2 होने के बाद
टोटल नंबर ऑफ सेल्स और टोटल नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स व्हिच आर फॉर्म्ड आर 4. देखो 1 2 3 और 4, चारों के चारों टाइप ऑफ सेल विल बी haploid in nature. So haploid cells after meiosis 2 are called as spermatids. Okay, spermatids. These spermatids, अभी ना थोड़ा सा एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है. ये जो spermatids होते हैं ना स्टूडेंट्स, spermatids, these spermatids are kind of a immature form of sperm. ठीक है, ये immature form of sperm है. मतलब क्या, सबसे पहले ये होंगे नॉन मोटाइल. ओके, नॉन मोटाइल का मतलब क्या, ये मूव नहीं कर सकते. एंड सेकेंडली ये ना नॉन फंक्शनल भी रहेंगे. ओके, नॉन फंक्शनल भी रहेंगे, मतलब ये कोई भी स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन नहीं कर रहे हैं. सो मुझे क्या करना है, मुझे इनको एक्टिव स्पर्म बनाना है. सो एक्टिव स्पर्म बनाने के लिए, एक्टिविटी देने के लिए मुझे यहां पे एक प्रोसेस करना पड़ेगा. एंड द नेम ऑफ दैट प्रोसेस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस. Now there is a difference. स्पर्मैटो, स्पर्मियो फर्क है. स्पर्मियो में मैंने क्या किया, स्पर्मैटिड्स को मैच्योर करवा दिया. और स्पर्मैटिड को मैच्योर करने का देखिए मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आई हैव व्हाट इज कॉल्ड एज द स्पर्म सेल और आल्सो कॉल्ड एज द spermatozoa. So once the spermiogenesis has happened, these spermatids will be converted into what is called as spermatozoa. ओके, स्पर्मेटोजोआ. ये स्पर्मेटोजोआ का क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट अगेन क्या रहेगा, हैप्लॉइड, डेफिनेटली. एंड दिस स्पर्मेटोजोआ कैन, इन अदर वर्ड्स, कैन आल्सो बी कॉल्ड एज, इसको आप और एक नाम से जानते हो, विच इज कॉल्ड एज स्पर्म. वेरी गुड, स्पर्म विल बी एन. सो ये वाला जो फेज अभी मैंने डिस्कस किया है, दिस इज अंडर द व्हाट इज कॉल्ड एज द मैच्योरेशन फेज. ओके, मैच्योरेशन फेज. सो मैंने सबसे पहले क्या डिस्कस कर लिया, मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है. फिर मैंने क्या किया, क्विकली रिवीजन कर लेते चलो फटाफट. तो मैंने क्या किया, मैंने प्राइमोर्डियल जर्म सेल लिया. प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को मैंने माइटोसिस करवा दिया, रिपीटेड. प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को जब मैंने माइटोसिस करवा दिया, तो सबसे पहला type of cell which I got was called as the spermatogonial cell or the spermatogonia. Spermatogonia का नेचर कैसे रहता है, spermatogonia is diploid in nature. यहाँ पे डिविजन थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा. उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद डेवलपमेंट रहेगा, थोड़ा सा ग्रोथ फेज स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे सेल क्या करेगा, अपना साइज बढ़ा देगा. सेल अपना साइज बढ़ा सकता है ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ द फूड. एंड वंस दैट फेज occurs or that phase is complete, you call that spermatogonia as primary spermatocyte. Primary spermatocyte again will be diploid. तो मतलब primary spermatocyte डिप्लॉयड है. अभी अपन क्या करेंगे, मियोसिस 1 कर देंगे. मियोसिस 1 करूंगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गॉट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज हैप्लॉयड इन नेचर. और उसके बाद मैंने क्या किया, मियोसिस 2 करवा दिया. मियोसिस 2 हो गया तो सबसे पहला जो सेल मुझे मिला, दैट इज कॉल्ड एज द स्पर्मेटिड. अगेन हैप्लॉयड, बट स्पर्मेटिड को मैंने क्या बोला था, याद करिए, यस, नॉन मोटाइल है और नॉन फंक्शनल है. तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मोटाइल करना पड़ेगा, मतलब उसका मूवमेंट करवाना पड़ेगा और उसको फंक्शनल स्पर्म बनवाना पड़ेगा. ये दोनों प्रोसेस में कैसे कराऊंगा, व्हाई, व्हाट इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस. एंड स्पर्मियोजेनेसिस जब बन गया, स्पर्मियोजेनेसिस जब हो गया, तो जाके मुझे क्या मिला, मुझे मिला स्पर्मेटोजोआ और ऑल्सो कॉल्ड एज द स्पर्म विच इज हैप्लॉइड इन नेचर. खत्म हो गया तुम्हारा स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोजेनेसिस. सो इसको अगर मैं कोई क्विक समरी में डालना रहेगा, जो मैंने अभी बोला उसको फटाक से अपन नोट डाउन कर सकते हैं क्या, यस, डेफिनेटली कर सकते हैं. सो मैंने क्या किया, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या था, प्राइमोर्डियल सेल. ओके, इसका नेचर 2n, करेक्ट. उसके बाद यस, वेरी गुड. देन यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनियल सेल. इसका नेचर कैसा था, करेक्ट, 2n. देन उसके बाद मैंने क्या करवा दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नेचर कैसा पाया मैंने, डिप्लॉयड. उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद मैं किस पे गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज n. देन मैंने गया किसमें, स्पर्मेटिड्स पे. स्पर्मेटिड्स अगेन विल बी n, करेक्ट. और लास्ट में जो बना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजोआ.
जोआ विच विल बी ऑल्सो इन। इसमें प्रोसेस का नाम जरा अपन लिख देते ताकि आपको बाद में रिकलेक्शन के लिए बहुत इजी हो जाएगा। इधर वाला इधर तक ये ऑल दिस इज माइटोसिस, इधर से क्या चालू हो गया, इधर से चालू हो गया मियोसिस 1, फिर यहां पे क्या हो गया मियोसिस, यस मियोसिस 2, यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। ओके यहां पे स्पर्मियोजेनेसिस हो गया और आपको मिला फंक्शनल। ये जो स्पर्मेटोजोआ रहेगा दिस विल बी मोटाइल एंड इट विल बी फंक्शनल। बट स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा है। ये रहा तुम्हारा स्पर्मेटोजेनेसिस। सो आपने क्या जानने का कोशिश किया कि मेच्योर स्पर्म बन कैसे रहा, मेच्योर स्पर्म मैंने कैसे बना। तो मेच्योर स्पर्म पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन हो गया है वो इन सारे फेज से होकर 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 फाइनली आपको मेच्योर स्पर्म मिल गया है। बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है बाय एनी चांस जस्ट गो बैक टू द वीडियो, just go rewind yourself and then you can have a look at it once again and by chance फिर भी कुछ ना समझे तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर दीजिए। सो नेक्स्ट प्रोसेस पे अपन जाने वाले हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। बिकॉज अभी तक अपन ने क्या देखा, अभी अपन ने स्पर्म को बना दिया तो जरा स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। सो स्टूडेंट्स क्विकली वी विल स्टार्ट। ओके स्ट्रक्चर of the sperm। okay स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला मेजर पार्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ हेड, हेड वाला पार्ट। सो अपन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। द नंबर 1 पार्ट पहले लिख देते, यू हैव 3 पार्ट्स। ओके नंबर 1 इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ हेड। ओके हेड है। देन यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज द मिडल पीस, मिडल piece, and then the third part is nothing but the tail। ओके इसी के बीच में हेड और मिडल पीस के बीच में एक छोटा सा रीजन आता है जिसको आप नेक बोलते हो, तो अपन इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एक इजी वाला पोर्शन अपन डिस्कस कर लेंगे जो इजी है काफी समझने के लिए, व्हिच इज कॉल्ड एज द हेड। So students, what is head of the sperm? Now head of the sperm, if you can notice, it is oval। okay आप नोटिस करेंगे ओवल है and it has what is called as the oval nucleus। definitely क्रोमोसोम होंगे उसके अंदर, जेनेटिक मटेरियल रहेगा तो उसके पास ओवल न्यूक्लियस है। the anterior aspect of the nucleus, the superior part, न्यूक्लियस के ऊपर वाला पार्ट अगर आप देखेंगे this part is nothing but what is called as the acrosome। so can I say the tip of the head, हेड का अगर आप टिप देखेंगे तो उस रीजन में देखो कुछ तो स्ट्रक्चर है ब्लूइश, दैट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट एक्रोजोम। ओके स्टूडेंट्स एक्रोजोम जो होता है ना काफी इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, तो अपन उसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। बट अभी आपको बता देता हूं फिलहाल के लिए एक्रोजोम कंटेन्स सर्टेन एंजाइम्स। ओके कुछ एंजाइम्स होते हैं इनके पास और इन एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, इन एंजाइम्स का फंक्शन होता है ओवम के फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होने वाला है उसमें हेल्प करना। सो दे विल हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। ओके ना कुछ 2-3 एंजाइम्स तुमको मैं बता देता हूं। जस्ट फॉर एग्जांपल यू हैव लाइसिन्स। ओके देन यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज द एक्रोसिन, देन यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज द हाइलोरोनिडेज। ओके ये कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स रहेंगे ये एक्रोसोम के पास, फंक्शन फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना। फिलहाल के लिए इतना ही बस हो गया। देन उसका जो बेस है ना, हेड का जो बेस है ना, वहां पे यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज द सेंट्रियोल्स। कैन यू सी द सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल का फंक्शन स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। सो अभी क्यों है क्या है वो थोड़ी देर में अपन समझेंगे, बट फिलहाल इतना समझना है कि जो उसका बेस है, ओके बेस में आपको 2 टाइप के पार्ट्स मिल सकते हैं। एक होता है जिसको आप बोलते हो प्रॉक्सिमल और दूसरा होता है व्हाट इज कॉल्ड एज द डिस्टल। नाउ द प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल पार्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द सेंट्रियोल। सर फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, व्हाई आई विल लेट यू नो लेटर। सो यू हैव 2 पार्ट्स, वन इज कॉल्ड एज अ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, अनदर इज कॉल्ड एज अ डिस्टल सेंट्रियोल। ये भी तुम्हारे बेस पे दिख सकता है। ओके तो ये अपन ने थोड़ा सा हेड के बारे में बात कर लिया। अभी अपन जानने का कोशिश करते हैं द नेक्स्ट पार्ट विच इज नथिंग बट द
नेक, पहले थोड़ा नेक के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो नेक होता है ना, नेक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज नेक कंटेन्स 15 to 20 स्पाइरली स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? यस, करेक्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो एटीपी के बनाने के प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। बस नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया का शेप अगर आप 11th स्टैंडर्ड में आपको पता रहेगा, नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कुछ इस तरीके से होता है ना। ओके, दिस इज हाउ इट इज। बट इन केस ऑफ स्पर्म आपको नॉर्मल टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखता, थोड़ा स्पाइरल दिखता है, थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म दिखता है। और इस स्पाइरल शेप्ड माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोगों ने बोला है नेबन कर्न। ओके, it is called as the Neben curve. Okay, so therefore spirally coiled mitochondria, then उसके बाद ये neck वाला region, then coming back to the next part, ये वाला मैं बात कर रहा हूँ, this is spiral mitochondria, then you have the tail. Okay, tail is a flagellated structure. What will be the function of a flagellated structure? Yes, correct, movement. So जो tail रहता है, tail जो sperm का tail रहता है, it is a flagellated. Okay, it is a flagellated structure. Flagellated मतलब it will help in the process of movement. Correct. So ये जो help करता है, ये mobility के लिए, motility के लिए help करता है। motility मतलब क्या? sperm has to reach to the ovum. तो स्पर्म को जब ओवम तक पहुंचना है तो उसको खुद को मूव करना पड़ेगा, और ये जो मूवमेंट देने का काम है वो किया है भाई साहब फ्लैजेला ने, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर ने। ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बताना बहुत जरूरी है बिकॉज दिस फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर कंटेन्स अ स्पेसिफिक type of a filament. Okay, this tail part contains a specific type of a filament. Okay, एक filament है इसके पास, and the name of the filament is what is called as the axial filament. Okay students, क्या है axial filament? Okay, function मोटिलिटी फंक्शन करेगा। ठीक है, जहां पे आपको ये पूरा का पूरा जो मेम्ब्रेन है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, इट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, बट एक ऐसा हिस्सा है जहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग नहीं है। ओके, जहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग नहीं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द एंड पीस। एंड पीस, तो एंड पीस जो रहेगा इट विल नॉट हैव द कवरिंग ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अदरवाइज पूरा का पूरा जो टेल रहेगा, पूरा का पूरा जो उसका फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर रहेगा, ये पूरा का पूरा विल बी कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन और अ सेल मेम्ब्रेन, आल्सो कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो मतलब अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में वापस 3-4 पार्ट्स देख लिए। दिस इज द हेड वाला पार्ट, उसमें अंदर अपन ने डिस्कस किया एक्रोसोम, द कैप ऑफ द स्पर्म। Then we talked about the nucleus, which contains the genetic material. Then you have the centrioles. Centrioles again will be proximal and distal, will help in the formation of spindle fibers during the process of fertilization. We'll talk about it soon, little later. Then you have the neck region, which is the covered by mitochondria, which is spirally coiled, called as the Neben kern. And then you have the tail part. The tail part is covered by a plasma membrane, and in between there is a presence of what is called as axial filament. Function of the tail to help in the process of movement or locomotion. Okay, mobility में help करेगा। ठीक है, तो ये अपन ने बात कर लिया स्पर्म के बारे में। तो हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस के अंदर हम लोगों ने क्या क्या जान लिया? वी टॉक्ड अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस, वी टॉक्ड व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, हाउ डज इट अकर। देन हम लोगों ने उसका मेल गैमेट का स्ट्रक्चर भी जान लिया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द स्पर्म। अभी स्टूडेंट्स विल गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। क्या बोलेंगे उसको? करेक्ट, कुछ देर पहले तो बताया था मैंने। ठीक है, इट इज नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड एज द oogenesis. Okay, oogenesis. देखो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे, थोड़ा by and large if you notice, oogenesis is little bit similar. Okay, oogenesis is little bit similar. It is little bit similar to spermatogenesis. Okay, कुछ तो सिमिलैरिटी भाई साहब है। ओके, डेफिनेटली कुछ तो सिमिलैरिटी है, बट यहाँ पे कुछ तो डिफरेंसेस भी है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस प्रेजेंट है। क्या डिफरेंस है, चलो जान लेते हैं। सबसे पहला ये जानेंगे अपन कि इसके पास कौन से फेजेस है। भाई दे आर सिमिलर टू स्पर्मेटोजेनेसिस। 3 फेजेस में अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं, 3 फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट फेज विल बी
व्हाट इज कॉल्ड एज, उधर क्या था, उधर क्या था, याद करिए याद करिए याद करिए, पीछे जाएंगे पीछे जाएंगे पीछे जाएंगे। इफ यू नोटिस, यस करेक्ट करेक्ट, जिनको आ गया सबसे पहला मल्टीप्लीकेशन फेज, करेक्ट, जिनको आ गया एक्सीलेंट। तो सबसे पहला फेज इज व्हाट इज कॉल्ड एज द multiplication phase. Okay, multiplication phase. The second phase, yes, absolutely right. Then you have what is called as the growth phase, and third is what is called as the maturation phase. Okay, then you have what is called as the maturation phase. So one is called as a multiplication phase, another is called as a growth phase, and third is called as the maturation. वापस तीन एग्जैक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस अभी आने वाला है। चलो देख लेते हैं फटाक से। स्टार्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स अपन? We are going to start with the very first, which is called as the PGC. What does PGC stands for? हाँ बराबर, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जो स्पर्म के केस में भी था, सो यहाँ पे भी वही है भाई साहब। इसका नेचर कैसे रहेगा? ऑब्वियसली डिप्लॉयड। ओके, देन उसके बाद क्या करूं, इसका माइटोसिस कर दूं। माइटोसिस मल्टीपल टाइम्स माइटोसिस करेंगे तो आपको मल्टीपल कॉपीज मिलेंगे। मल्टीपल कॉपीज, उधर क्या बन रहा था, स्पर्मेटोगोनियल सेल, यहाँ पे बनेगा oogonial सेल। ओके, यहाँ पे बनेगा oogonial सेल, इसका प्लॉइडी, इसका क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट 2n। ठीक ठीक, कौन से डिवीजन से हुआ? माइटोसिस, करेक्ट। ये सारा आप मल्टीप्लीकेशन में डाल दीजिए। जो oogonial सेल है, अभी oogonial सेल अगेन विल इंक्रीज इन साइज, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। सर डिफरेंसेस कहां पे? बता रहा हूं। तो oogonial सेल जो है, oogonial सेल भाई साहब है डिप्लॉयड। ओके, इट विल डेवलप। ओके, डेवलप होने के कारण व्हाट विल हैपन, इट विल इंक्रीज इन साइज। एक बार साइज में इंक्रीज हो गया तो क्या बनाएगा? प्राइमरी oocyte। देखो जरा उधर देखो, राइट साइड में देखिए आपके, प्राइमरी oocyte। ओके, प्राइमरी oocyte। सेम प्राइमरी oocyte का भी क्या कर रहा हूं, अभी अपन जा रहे हैं प्राइमरी oocyte को मियोसिस 1 करने। तो प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट? देखिए जरा, प्राइमरी oocyte will undergo what is called as meiosis 1। ओके, मियोसिस 1 बन गया। ये जो मियोसिस 1 है, इसके अंदर आपको दो टाइप के सेल्स मिले, बराबर ना? मियोसिस 1 में दो टाइप मिले। अभी यहां पे चेंजेस है, बिकॉज मियोसिस 1 इसका मैंने करने के बाद जब ये सेल जब स्प्लिट हो जाएगा तो दो टाइप के सेल्स आपको मिलेंगे। ड्यू टू इनकम्प्लीट और पार्शियल डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म, पे अटेंशन टू माय वर्ड्स, due to incomplete or partial division of cytoplasm, what is happening, there's a bigger cell which has been formed and there is a smaller cell which has been formed। ठीक है, इनकम्प्लीट और पार्शियल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म की वजह से आपको दोनों इक्वल सेल्स नहीं मिले हैं। आपको यहां पे क्या हो गया, आपको एक सेल बड़ा सा मिल गया और एक सेल छोटा सा मिल गया है। अब ये जो बड़ा वाला सेल है, दिस बड़ा वाला सेल इज नथिंग बट द सेकेंडरी oocyte। मतलब प्राइमरी oocyte का डिवीजन करने के बाद आपको यहां पे दो स्प्लिट आया, एक इस तरफ लेफ्ट वाला विच इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी oocyte, और वो जो छोटा वाला सेल है, देखिए छोटा वाला सेल, दैट छोटा वाला सेल इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी। सर कैन यू टेल मी व्हाट इज अ पोलर बॉडी? यस, सी गाइस, पोलर बॉडी तब बनता है जब साइटोप्लाज्म का इक्वल डिवीजन नहीं हो रहा। तो एक सेल बहुत बड़ा बन गया और एक सेल बहुत छोटा बन गया। ये जो छोटा वाला सेल है, इन अ वे is a non-functional cell which is not going to form ovum। बराबर, ओवम का फॉर्मेशन के लिए आपको वही सेल लगेगा जो सुपीरियर है। अभी इस केस में मियोसिस 1 करने के बाद आप जरा देखिए, सुपीरियर वाला कौन दिख रहा है, लेफ्ट साइड वाला कि राइट साइड वाला? डेफिनेटली लेफ्ट साइड वाला, जो सेकेंडरी oocyte है। तो जो सेकेंडरी oocyte है वो सुपीरियर रहेगा और वही आगे चल के मियोसिस 2 जब करेगा तो जाके फंक्शनल ओवम बनाने वाला है। सो मतलब एक तरीके से जो नॉन फंक्शनल ओवम है, the cell which has no function in terms of fertilization or because of unequal cytoplasmic division, एक सेल बना है जो नॉन फंक्शनल रहेगा, उसको मैंने बोला है पोलर बॉडी। तो यहां पे सबसे पहला पोलर बॉडी बन गया। ओके, ये पोलर बॉडी फर्दर डिवाइड, मतलब जनरली तो ये मियोसिस 2 नहीं करता, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग कंप्लीट मियोसिस, तो सेकेंडरी oocyte को भी देखेंगे आप जरा। ठीक है, सेकेंडरी oocyte का क्या होने वाला है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं। ठीक है, सेकेंडरी oocyte, आई विल कंटिन्यू। So you have secondary oocyte, okay, secondary oocyte,
सेकेंडरी oocyte is going to undergo, yes बराबर है, it is going to undergo what is called as meiosis 2. एक बार सेकेंडरी oocyte meiosis 2 करवा दिया, then you will have what is called as, look at the diagram, you will have what is called as ओवम. सो मतलब क्या, आपको सेकेंडरी oocyte का meiosis 2 करने के बाद आपको ओवम मिलने वाला है. इसमें एक चीज नोट करने जैसी है, सेकेंडरी oocyte विल बी हैप्लॉइड, ओवम विल बी हैप्लॉइड. और सर उस पोलर बॉडी का क्या हुआ, वो पोलर बॉडी फर्दर अगर डिवाइड करता है, सो दिस फर्स्ट पोलर बॉडी जो आपको मिला था, भी याद है पिछले वाले स्लाइड में, यस, ये फर्दर अगर डिवाइड करेगा तो इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज अ टू पोलर बॉडीज. ओके, वो उसके जैसे बनाएगा ना, वो थोड़ी ना अलग से कुछ बनाने वाला है. तो मतलब आप जब इसको देखेंगे तो फर्स्ट पोलर बॉडी है, स्प्लिट हो गया दो में, स्प्लिट होने के बाद आपको मिला दो अलग अलग टाइप के पोलर बॉडी जो अगेन नॉन फंक्शनल रहेंगे, बिकॉज आर नॉट गोइंग टू फंक्शन एनीथिंग लाइक दैट इन केस ऑफ ओवम. और ऑन द कॉन्ट्ररी पार्ट जो सेकेंडरी oocyte है वो फर्दर meiosis 2 कंप्लीट कर देगा और ओवम बना देगा. यहां पे एक थोड़ा सा कैच है. अभी आप जब स्पर्मेटोजेनेसिस में गए थे बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसा हुआ, meiosis 2 कंप्लीट हो गया. ओके, कंप्लीट meiosis 2 हो गया, फंक्शनल स्पर्म बन गया. बट ओवम में ये चीज नहीं हो रहा. ओवम में क्या होता है पता है, ओवम के अंदर, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ओवम के बारे में बात कर, बिकॉज आई होप आपको पोलर बॉडी का कॉन्सेप्ट समझ गया है. ठीक है, तो मैं अभी ना जो अपने काम का चीज है उसके बारे में बात कर रहा हूं. सो अभी ना ये स्टूडेंट्स, दिस सेकेंडरी oocyte विच इज फॉर्म्ड, ओके, ये सेकेंडरी oocyte जो बनता है, यही आगे जाके इट विल बी released from what is called as Graafian follicle. Do you remember what is Graafian follicle? चलो रिकलेक्ट करो, यहां पे पॉज करो वीडियो. ग्राफियन फॉलिकल अगर आपको याद रहेगा, ग्राफियन फॉलिकल वो था जो ओव्यूलेशन के जस्ट पहले वाला मैच्योर फॉलिकल था, टीएस ऑफ ओवरी में, याद करिएगा. सो सबसे मैच्योर वाला फॉलिकल जो बना था दैट वाज ग्राफियन फॉलिकल. और यही ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक oocyte था, उसी oocyte का नाम होता है सेकेंडरी oocyte. तो यही सेकेंडरी oocyte आगे चल के ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाएगा. बट सेकेंडरी oocyte विल बी अरेस्टेड इन मेटाफेज. ओके, सेकेंडरी oocyte जो है ना, इसका देर विल बी इनकम्प्लीट, ओके, देर विल बी इनकम्प्लीट meiosis 2. meiosis 2 इनकम्प्लीट रह जाएगा. ठीक है, मतलब क्या, दिस सेकेंडरी oocyte विल बी अरेस्टेड एट मेटाफेज, इट विल बी अरेस्टेड एट मेटाफेज 2. ओके, ये मेटाफेज में अरेस्ट हो जाएगा. सर क्यों, बिकॉज फर्दर डिवीजन करने के लिए मुझे लगता है सेंट्रियोल्स, मुझे लगता है स्पिंडल फाइबर, बिकॉज एनाफेज में क्या हो रहा है, 11th स्टैंडर्ड में जाइए, एनाफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम स्प्लिट होते हैं. सो स्प्लिटिंग के लिए मुझे स्पिंडल फाइबर्स लगते हैं, सेंट्रियोल्स लगता है. इसके पास सेंट्रियोल भाई साहब है ही नहीं, तो सेंट्रियोल्स है ही नहीं, तो वहां पे जो ओवम हमारा रहता है, जो सेकेंडरी oocyte है, वो क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा. वो अगर वहां पे अरेस्ट हो गया है तो फर्दर प्रोसेस तभी कंप्लीट होगा जब स्पर्म वो सेंट्रियोल्स लेके आएगा जो उसके पास है. याद आया कि नहीं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स. तो जब तक स्पर्म्स नहीं आते तब तक फर्टिलाइजेशन और साथ ही साथ इसका meiosis 2 कंप्लीट नहीं होने वाला. मतलब सेकेंडरी oocyte इज अरेस्टेड इन meiosis 2 ऑफ द मेटाफेज 2. वहां पे वो अरेस्ट हो गया है, वो अरेस्ट हो गया. अभी फर्दर एक बार अरेस्ट होने के बाद ये सेकेंडरी oocyte विल रिज्यूम, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सेकेंडरी oocyte. ओके, सेकेंडरी oocyte विल resume meiosis 2 only after or during the process of fertilization. फर्टिलाइजेशन में कौन सा नया वाला सेल आने वाला है, यस, स्पर्म आएगा. तो स्पर्म और सेकेंडरी oocyte का जब फ्यूजन हो जाएगा तभी जाके ये सेकेंडरी oocyte विल मैच्योर एंड फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज ओवम. आई होप आपको समझ में आ रहा है. सो बोलने का मेरा मतलब यहाँ पे क्या रहा कि भाई साहब मैंने क्या किया, देखो जरा मैंने क्या किया. सबसे पहला आई स्टार्टेड, ओके चलो वी कैन हैव अ क्विक समरी ऑफ दिस. यहाँ पे मैं समरी कर देता हूँ फटाक से, चलो वो भी देख लेते हैं. देन यू हैव सबसे पहला पीजीसी. ओके, पीजीसी का 2n माइटोसिस करो. माइटोसिस करने के बाद oogonal सेल अगेन विल बी 2n. देन उसके बाद oogonal थोड़ा सा साइज में बढ़ गया, प्राइमरी oocyte. अभी देखो पीछे जाएंगे, प्राइमरी oocyte विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ meiosis 1.
सो मतलब क्या क्या, ऑब्वियसली ये दिस विल बी 2n. सो दिस इज गोइंग टू अंडरगो मियोसिस 1. मियोसिस 1 अंडरगो करने का यहाँ पे क्या बना, सेकेंडरी oocyte. और यहाँ पे क्या बना, करेक्ट, पोलार बॉडी. ओके, इसका प्लॉइडी कैसे रहेगा, दिस विल बिकॉज मियोसिस कर दिया भाई साहब एन, तो यहाँ पे वापस प्लेट आएगा. सेकेंडरी oocyte, ये जो सेकेंडरी oocyte रहेगा, सॉरी सेकेंडरी oocyte जो रहेगा, ये सेकेंडरी oocyte फंक्शनल ओवम बनाने वाला है. सो यहाँ पे फंक्शनल ओवम बन जाएगा और यही फंक्शनल ओवम अगेन विल बी एन. पोलार बॉडी का पोलार बॉडी इधर रह गया है. ओके, so now if you look at the diagram here, polar bodies बन गए हैं. so again there is formation of what is called as polar body. और यहाँ पे जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे वापस पोलर बॉडी बन जाएगा, यहाँ पे वापस पोलर बॉडी बन जाएगा. मॉरल ऑफ द स्टोरी, बाय एंड लार्ज मुझे इंटरेस्ट है प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक, देन मुझे इंटरेस्ट है ओगोनियल सेल, देन मुझे इंटरेस्ट है प्राइमरी oocyte. अभी मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, मैं इधर आ गया, ये उसके बाद ये खत्म. ठीक है, इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को मैंने क्या बोला, oogenesis, खत्म. स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा सिमिलर तो है ना, आपको समझ में तो आ रहा होगा. बस डिफरेंस क्या आया भाई साहब, पोलर बॉडी का फॉर्मेशन इज द डिफरेंस. बिकॉज वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में चारों के चारों स्पर्म फंक्शनल बन रहे हैं. यहाँ पे देखो 4 सेल्स बने ना, 1 2 3 4, फंक्शन कितना, एक. फंक्शन सिर्फ एक ही करने वाला है, बाकी 3 को पोलर बॉडी बोल रहा हो. तो मतलब क्या, एट द एंड ऑफ द स्टोरी स्पर्म्स चारों के चारों फंक्शनल, ओवम ओनली 1 फंक्शनल. सो स्पर्मेटोजेनेसिस देख लिया, देन हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देख लिया, अभी हम लोगों ने देखा oogenesis, और अभी अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम. ठीक है, तो तुम्हारे सामने अभी जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम, मतलब जो अभी तक फर्टिलाइज हुआ नहीं है. ठीक है, पार्ट बाय पार्ट जरा जाने का कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर. कि सबसे पहला अपन ये जानते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम फर्स्ट. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम. ओके, सो ओवम, आपके पास ओवम का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जिसका जनरली डायमेंशन अगर आप देखोगे, इसका डायमेंशन इज अप्रोक्सीमेटली द साइज इज 0.1 मिलीमीटर और 100 माइक्रॉन्स. ओके, सबसे पहले, उसके बाद ओवम, जो ह्यूमन का जो ओवम होता है, इट इज नॉन क्लेडोइक. ओके, नॉन क्लेडोइक एंड इट इज व्हाट इज कॉल्ड एज माइक्रोलेसिथल. ओके, तो नॉन क्लेडोइक हो सकता है और माइक्रोलेसिथल हो सकता है. आपका डाउट आना चाहिए यहाँ पे, बरोबर है. नॉन क्लेडोइक मतलब इट डज नॉट हैव अ शेल. ओके, शेल नहीं है, शेल इज एब्सेंट. कवरिंग जो होता है ना, कवरिंग, शेल वो नहीं है. माइक्रोलेसिथल मतलब देर इज लिटिल क्वांटिटी ऑफ योक. ओके, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट चल रहा है तो योग थोड़ा सा क्वांटिटी में. माइक्रोलेसिथल, शेल एब्सेंट है, नॉन क्लेडोइक. ओके, द एग मेम्ब्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जब आप स्ट्रक्चर अब ढंग से अगर देखेंगे, पूरा सर्कुलर बीच वाला ओवम है, इसके अंदर का बीच वाला सेंटर मोस्ट पार्ट इज द ओवम, और उसका मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज द एग मेम्ब्रेन. सो द एग मेम्ब्रेन is what is called as the vitelline membrane. Okay, इसको मैंने क्या बोला, vitelline membrane. Okay, vitelline membrane. अभी ये vitelline membrane कुछ तो एक मस्त एकदम एक काम कर दे रहा है. vitelline membrane क्या करता है पता है? vitelline membrane it releases a non-cellular layer which is called as the zona pellucida. Okay, क्या रिलीज कर दिया इसने, जोना पेल्यूसिडा. ना, कैन यू स्पॉट जोना पेल्यूसिडा? दिस रीजन, दिस पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का रीजन इज व्हाट इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा. जोना पेल्यूसिडा किसने रिलीज किया है? विटिलाइन मेम्ब्रेन ने. नाउ इफ यू नोटिस, विटिलाइन मेम्ब्रेन इनर मोस्ट, जोना पेल्यूसिडा आउटर मोस्ट. तो इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट के बीच में जगह है. ओके, सो देर इज a space. Okay, there is a space between vitelline membrane, okay, vitelline membrane and zona pellucida. This space is called as
vitelline space. Okay, it is called as the perivitelline space. Now just go, I want you to go back to Graafian follicle. जरा याद करिए, अगर आपको याद नहीं तो वो पीछे वाला वीडियो देखिए आप। जब ग्राफियन फॉलिकल के बारे में जब अपन डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे ना फॉलिकुलर सेल्स थे, याद आया? वो डिस्कस प्रोलीजेरस एंड कुम्युलस ओफोरस, सो ना फॉलिकुलर सेल्स थे। फॉलिकुलर सेल्स का सबसे इनर मोस्ट लेयर, ओके समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉलिकुलर सेल्स का सबसे इनर मोस्ट लेयर। सो द इनर मोस्ट लेयर, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, ओके मैं समझा ना मैं कहां पे हूं? यस, ग्राफियन फॉलिकल का इनर मोस्ट फॉलिकुलर सेल्स। सो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स is going to release a layer. Okay, it is going to release a type of layer. Now this type of layer is nothing but the corona radiata. Okay, it is corona radiata. Now I hope you can see here what is corona radiata. Corona radiata गोल 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 से ये सब फॉलिकुलर एक्सटेंशंस है। सो जो जब ग्राफियन फॉलिकल पूरा बन रहा था तो इनर मोस्ट फॉलिकुलर लेयर ने एक रिलीज कर दिया लेयर। उस लेयर का नाम क्या है? उस लेयर का नाम है हमारा कोरोना रेडिएटा। सो कोरोना रेडिएटा फाइंड्स द पेरिफेरल रीजन ऑफ द ओवम, it forms the peripheral region of the ovum. Secondly if you go inside the ovum, अगर आप ओवम के अंदर जाएंगे, सॉरी ओवम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कैन यू सी द ग्रीन कलर पार्ट, दिस इज द पोलर बॉडी, दिस इज द पोलर। ये आगे चल के डीजनरेट होने वाला है बट यहाँ पे पोलर बॉडी जो अभी अपन ने oogenesis में देखा। सो नाउ इनसाइड द ओवम, व्हेन यू टॉक अबाउट इनसाइड द ओवम, ठीक है, inside the ovum you have a nucleus. okay, अपने पास न्यूक्लियस होता है बट इसको न्यूक्लियस फिलहाल नहीं बोलते हैं बिकॉज वो डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है उसके अंदर के डीएनए का, क्रोमोसोम का। तो आप इसको आप बोलते हो जर्माइनल वेसिकल। ओके, उसको आप जर्माइनल वेसिकल बोल सकते हो या फिर यहाँ पे कैन यू सी दिस न्यूक्लियस वाला पार्ट, जर्माइनल वेसिकल। दिस जर्माइनल वेसिकल विल फॉर्म इन टर्न, this germinal vesicle in turn will form what is called as the female pronucleus. It is going to form female pronucleus. तो आगे चल के फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनने वाला है बट कभी जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब उसका प्रोसेस चलेगा उस वक्त तक अपन क्या बोलने वाले हैं उसको? जर्माइनल वेसिकल। जर्माइनल वेसिकल बोल दीजिए और आगे चल के वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनेगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वो मेटाफेज 2 का रेस्टेड जो डिवीजन है प्रोसीड हो जाएगा और मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट मॉड्यूल का डिस्कशन है। बट फिलहाल के लिए इतना चीज बन गया है। नाउ पोलैरिटी दिखाता है अपना जो ओवम है, जो ओवम होता है ओवम, दिस ओवम शोज पोलैरिटी। ओके, पोलैरिटी मतलब हिस्से। ओके, हिस्से। अभी इसके अंदर दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसको आप बोलते हैं एनिमल पोल। ओके, एक होता है एनिमल पोल और दूसरा होता है vegetal pole. Okay, so one is called as the animal pole, another is called as the vegetal pole. Sir, कौन सा पोल किधर है? ये वाला पार्ट, the region which is near to the polar body and the ovum is called as the animal pole. Opposite to that is what is called as the vegetal pole. So this is what the structure of ovum is. जो अनफर्टिलाइज्ड ऑफ कोर्स। सो अनफर्टिलाइज्ड ओवम का स्ट्रक्चर में मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया? सबसे पहले नॉन क्लेडोइक है, माइक्रोलेसिथल है, एग मेम्ब्रेन विटेलाइन है, जोना पेल्यूसिडा रिलीज किया, दोनों के बीच के स्पेस को अपन बोलेंगे करेक्ट पेरीविटेलाइन स्पेस। And then we talked about the innermost follicular layer which is going to release what is called as corona radiata. Then ovum के अंदर न्यूक्लियस है जिसको आप जर्माइनल वेसिकल बोलते हो, जो आगे चल के फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनेगा जब फर्टिलाइजेशन का बात आ जाएगा। एंड ओवम दो हिस्सों में पोलैरिटी दिखा सकता है। एक द रीजन इज कॉल्ड एज एनिमल पोल विच इज न्यूक्लियस एंड द पोलर बॉडी के नजदीक, एंड ऑपोजिट वाले हिस्से को आप बोलते हो वेजिटल पोल। ओके स्टूडेंट, सो आई होप अभी तक अपन ने क्या क्या फिनिश किया इस मॉड्यूल में। देखिए, सबसे पहले वी डिस्कस स्पर्मेटोजेनेसिस, structure of sperm, oogenesis, structure of ovum. Okay, we have finished 4 important topics इस मॉड्यूल में। नेक्स्ट वाले मॉड्यूल में we will start the core of the gametes, that is fusion of gametes, also called as the fertilization. So students, फर्टिलाइजेशन के मॉड्यूल में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आपके ये सारे मॉड्यूल्स क्लियर रहे। अगर आपको बाय एनी चांस कुछ डाउट्स आते हैं, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग दिस मॉड्यूल और एनी काइंड ऑफ प्रीवियस मॉड्यूल्स,
please put down in the comment section so as I can see it and reply you as soon as I see it. If at all you have any other kind of doubts related to the module or any particular doubt, please get in touch with us. And I hope you have understood this module. And I'm very sure that आपने previous वाले modules, previous वाले lectures देखे होंगे. अगर नहीं देखे हैं, please visit those lectures because सारे के सारे interconnected है. I will see you in the next module. Till then, take care and stay safe.